میرے بابا نے اچانک ہی میرا رشتہ اپنے دوست کے بیٹے سے کر دیا اور دبے لفظوں میں مجھے سمجھا دیا کہ یہ رشتہ ہونا ان کے لیے بہت اہم ہے۔ لیکن جب میری اس لڑکے سے ملاقات ہوئی تو میری جان نکل گئی۔ وہ تو مجھ سے شادی کا روادار ہی نہیں تھا۔ اس نے کہا کہ میں رشتے سے انکار کر دوں، لیکن وہ مجھے پہلی نظر میں ہی پسند آ گیا تھا اور میں نے خود غرض ہو کر انکار کرنے کی بجائے شادی کر لی۔ لیکن اس وقت میری روح فنا ہو گئی جب شادی کی رات اس نے مجھے چلو چلو جلدی کرو، مہمان آتے ہی ہوں گے، پاپا کی آواز نے سب کو دوڑایا۔ آج صبح سے ہی گھر میں ہلچل مچی ہوئی تھی۔ پاپا کے بہت پرانے دوست بیگ صاحب اپنی فیملی کے ساتھ آ رہے تھے۔ اس بار وہ خاص مقصد کے تحت آ رہے تھے، اس لیے اہتمام بھی خوب ہو رہا تھا۔ امی کی خاص بریانی، شامی کباب، میٹھے میں رس ملائی، خوبصورت سلاد اور رائتا۔ غرض پاپا کسی قسم کی کمی نہیں چاہتے تھے۔ امی نے پورے ہفتے سے میری دوڑ لگائی ہوئی تھی۔ صفائی دھلائی، غرض گھر کا کونا کونا چمک رہا تھا۔ امی، اب مہمان ہماری الماریاں تو نہیں کھولیں گے، میں نے چڑھ کر کہا، مگر امی کا لمبا لیکچر سن کر اب کسی کام میں دخل نہ دینے میں ہی عافیت سمجھی۔ اتنے کام کے بعد اب میرا دل صرف نہا دھو کر سونے کا چاہ رہا تھا، مگر اتنے جتن پاپا میرے لیے ہی تو کر رہے تھے۔ دراصل بیگ صاحب اپنے بیٹے کے لیے مجھ سے ہی ملنے آ رہے تھے، ساتھ اپنے فرزند احمد بیگ کو بھی لا رہے کہ دوستی رشتہ داری میں بدل جائے۔ لون کا خوبصورت سوٹ پہنا، نیچرل میک اپ کیا، سلکا سے تیار ہوئی۔ تم تو بہت حسین لگ رہی ہو، مہک آئینہ میں دیکھ کر اپنی تعریف خود ہی کر ڈالی۔ پتہ نہیں کوئی کرے یا نہ کرے۔ مہک بیٹا تیار ہو گئی، وہ لوگ آتے ہی ہوں گے، پاپا نے آواز لگائی۔ اچھا سنو، مجھے اس رشتے سے بہت امیدیں ہیں، پاپا نے سمجھاتے ہوئے کہا۔ مجھے احمد بہت پسند ہے، وہ بہت اچھا لڑکا ہے، میں ہر طرح سے مطمئن ہو کر انہیں بلا رہا ہوں۔ بس اب ایک نظر دیکھ لو، کوئی غلطی نہ کرنا جس سے معاملات بگڑے۔ پاپا نے تنبیہ کی، گویا پاپا نے یہ سمجھا دیا تھا کہ میری رائے نہیں لینی، وہ سب طے کر چکے ہیں۔ اب تو میری جان پر بنائی، یعنی جو جناب آ رہے ہیں وہ پسند نہ بھی ہو تو کچھ کیا نہیں جا سکتا۔ اب ساری بات احمد صاحب کے مرہون منت ہے۔ پتہ نہیں پر کیوں مجھے ان صاحب سے کچھ خفگی سی تھی۔ میں نے تو کبھی ان کو دیکھا بھی نہیں، پر کیوں ان سے کچھ بیر سا ہو رہا تھا۔ نہ جانے کتنے خواب بننے تھے، اب یا تو پورے ہوں گے یا پھر ٹھنڈی آہ بھری۔ باجی وہ آ گئے، میرے چھوٹے بھائی علی نے بڑے طنزیہ لہجے میں آ کر بتایا تو میں اور بھی کچھ تپ گئی۔ مہک بیٹا آؤ، سب سے ملو، پاپا نے بلایا۔ اب تو دھڑکنوں کا یہ حال کہ ایک ساتھ کتنے ڈرم کانوں میں بج رہے تھے، سانس قابو میں نہ آ رہی تھی۔ ہائے اللہ، کہیں یہ مجھے دمہ کی مریضہ نہ سمجھ لے، یہ سوچ کر خود کو قابو کیا اور ہمت کر کے کمرے میں داخل ہو گئی۔ السلام علیکم، ایک دفعہ بلند آواز سے ہی سلام کرنے پر اکتفا کیا اور آنٹی اور ان کی دونوں بہنوں سے مصافحہ کر کے ایک طرف بیٹھ گئی۔ ان جناب کی طرف تو نظر اٹھانے کا بھی موقع نہ ملا، مگر آنٹی بہت سمجھدار نکلی، مجھے اپنے پاس بٹھانے کے بہانے بالکل احمد کے سامنے بٹھا دیا۔ ہمت کر کے میں نے بھی نظر ڈال لی۔ اف، اب تو دھڑکنیں کوئی نیا ہی ساز بجا رہی تھی۔ سفید قمیض شلوار میں ملبوس، گندمی رنگت، ہلکی سی شیو اور کیا زبردست پرفیوم، دل دماغ بھی مہک گیا۔ کیا ایسا بھی ہوتا ہے؟ کوئی ایک نظر میں ہی دل میں اتر جاتا ہے۔ میں کچن میں جاتی ہوں، میں بہانہ کر کے وہاں سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ خود کو سنبھالنا بھی تو تھا، پتہ نہیں وہ کیا تھا، شاید پہلی دفعہ کسی لڑکی کو اس نظر سے دیکھا تھا یا واقعی ان میں کچھ سحر تھا۔ غرض پاپا کی پسند پر اب مجھے پورا اعتماد ہو گیا تھا، کاش ان کو بھی میں پسند آ جاؤں۔ اب تو دل ہی دل میں یہی دعا کر رہی تھی، مہمانوں کی پورے دل سے خاطر تواضع کی، بس کرو باجی، کہیں ساتھ ہی نہ لے جائیں آپ کو، اتنا خیال کر رہی ہو۔ علی نے چپکے سے میرے کان میں سرگوشی کی تو میں کچھ شرمندہ سی ہو گئی۔ ان کی دونوں بہنوں مریم اور ماریا نے بھی اچھی طرح میرا انٹرویو لیا۔ شاید ہی کبھی اتنی خوش دلی سے میں نے کسی سے بات کی ہو، پر یہاں تو معاملہ ہی کچھ اور تھا۔ مہک بیٹا جاؤ، احمد کو ٹیرس دکھا دو، آنٹی نے شرارتی انداز میں کہا۔ میں تو چونک گئی، ایسا کچھ ہی نہیں تھا۔ میں امی کی طرف دیکھنے لگی تو انہوں نے بھی گردن ہلا کر منظوری دے دی۔ اب تو سانس اوپر کی اوپر اور نیچے کی نیچے، چپ چاپ انہیں ٹیرس پر لے گئی۔ میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں، احمد نے مجھے مخاطب کیا۔ جی بولیں، میں نے دھیمے لہجے میں کہا۔ وہ کچھ ہچکچاتے ہوئے بولے،
वो बात दरअसल ये है कि आप इस रिश्ते से मना कर दें, आप इस रिश्ते के लिए मना कर दें प्लीज। अहमद ने कुछ हिचकिचाते हुए मुझे मुखातिब किया। जी? मैं हैरानगी से उनकी तरफ देखने लगी। वो मुझे गलत मत समझे, पर आप बस घर में कह दें कि मैं आपको पसंद नहीं हूँ। अहमद ने मजीद कहा। मगर क्यों? ये तो सच नहीं, मैंने दिल में सोचा। अब हजारों सवालात जहन में उठ रहे थे। मैंने अभी तो ख्वाब बुनने शुरू ही किए थे, पर ये क्या? हिम्मत करके पूछा, क्या मैं वजह जान सकती हूँ? बस मैं अभी शादी नहीं करना चाहता। तो ये बात आप अपने घर में बताते मुझसे क्यों कह रहे हैं? मैंने कुछ खफगी से कहा। वो अब्बू ने मुझसे पूछे बगैर ही सब तय कर लिया। मुझे तो एक नजर दिखाना ही जरूरी लगा उन्हें। मैं समझ गई उनका हाल भी मेरे वाला है। देखिए, मैं भी अपने पापा को मना नहीं कर सकती। अब आपको मैं पसंद नहीं तो खुद मना करो। मैंने कुछ गुस्से में बोला तो वो जनाब भी खूब बोल पड़े। मैं बोल सकता तो आपसे क्यों कहता? पता नहीं तुम में उनको क्या दिखा जो बस महकी मेरी बहू बनेगी की रट लगाई हुई है। इतनी भी अच्छी नहीं हो। अब तो मैं खुद पर काबू ना पा सकी, खूब फटी। मुझे कोई शौक नहीं है आपसे शादी करने का। आप में भी ऐसी कोई खास बात नहीं है। मैंने भी तंजिया कहा। तो मना कर दो, यही तो बोल रहा हूँ। अहमद की बात सुनकर मुझे अब बहुत गुस्सा आ रहा था। मैं क्यों करूँ? आपको मसला है तो खुद करो, मुझसे कोई उम्मीद मत रखो। मैंने भी दो टोक जवाब दिया। अहमद भाई, अम्मी कह रही हैं चलें। मरियम ने आकर कहा तो वो फौरन उठ खड़े हुए। मैं भी बिना कुछ कहे आगे बढ़ गई। हमारी पहली मुलाकात ऐसी हो गई, सोचा भी नहीं था। उन सब के जाने के बाद अम्मी ने मुझसे मुस्कुराते हुए अहमद के बारे में पूछा तो मैं भी मुस्कुरा दी। बस अब मजीद कोई बात ना किसी ने की ना मैंने कुछ कहा। शायद मैं कुछ खुद गर्ज सी हो गई थी, इसीलिए अहमद की बात ना मानी। अहमद ने भी घर में कोई बात ना की और वालिदैन की मर्जी से हमारी मंगनी कर दी गई। अपनी पहली मुलाकात पर मुझे बहुत गुस्सा आता था। कई बातें करना चाहती थी मगर अहमद से दोबारा बात करने का मौका ही ना मिला। शादी की तैयारियां जोरों शोर से जारी थी, पर मेरा दिल बहुत से अंदेशों से घिरा हुआ था। पता नहीं कुछ था जो अंदर ही अंदर मुझे सता रहा था। एक बेचैनी सी थी। इस रात की कैफियत में दिन रात गुजर रहे थे। अरे महक, देखो तो कौन आया है? अम्मी ने आवाज लगाई। आयशा, मेरी जान कैसी हो? मैं उससे लिपट कर रोने लगी। इतने दिनों बाद उससे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। शादी से एक हफ्ता पहले मेरी कजन आयशा हमारे घर रहने आ गई। वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी क्योंकि हम उम्र थे, मगर वो मुझसे ज्यादा समझदार और पुरएतमाद थी और मुझे बहुत अच्छे से समझती थी। वो मेरी बेचैनी समझ गई। रात को टेरिस में टहलते हुए मैंने उसे सारी बात बता दी। तुम पागल तो नहीं हो? क्यों कर रही हो ये शादी? जब वो मना करने को कह रहा था तो मना कर देती यार। पापा से सब बोलती, आगे वो खुद ही देख लेते। आयशा मुझे डांट रही थी मगर वो खुद अपने घर में मना करते। मसला तो उनको था ना, मुझे तो नहीं। मैंने सफाई दी। यार, ये तुम्हारी जिंदगी का मामला है। हो सकता है वो किसी और को पसंद करते हो और ये बात अपने घर में ना बता सकते हो। क्या करोगी तुम अगर ये सब सच निकला तो? यार, तुमने तो मुझे और डरा दिया। मैं रोने लगी। मैं तो बस तुम्हारे लिए कह रही थी। वो प्यार से मुझे पुचकारने लगी। मैं क्या करूं? ये सब बातें कैसे क्लियर करूं? उसे भी अब मेरी बेबसी पर तरस आ रहा था। तुम अहमद को कॉल करो। कुछ सोचने के बाद आयशा ने मुझे हिलाया। मैं कॉल करूं? दिमाग खराब है तुम्हारा? घर में किसी को पता चला तो? ना बाबा, ना, मैं नहीं कर सकती। मैंने साफ इनकार। ना बाबा, ना, मैं नहीं कर सकती। मैंने साफ इनकार कर दिया मगर वो बाजिद थी। अपना मोबाइल निकाल कर दिया। कहा कि कॉल करो वरना बताती हूँ सबको अहमद साहब की बातें। वो धमकी देते हुए बोली। मैं तो तुमसे कह के पछताई। मैं खफा होकर बोली, मेरी दोस्त, मैं तुम्हारे लिए ही कह रही हूँ। सब क्लियर कर लोगी, तुम अपनी नई जिंदगी बेहतर तरीके से शुरू करोगी, वरना शक शुबहात के साथ जिंदगी नहीं गुजर सकती। मैंने कोई शक नहीं किया, तुम मेरे जहन में शक पैदा कर रही हो। मैं गुस्से से बोली तो वो भी खामोश हो गई। लेकिन सारी रात इसी बारे में सोचती रही। उफ तौबा, इस लड़की ने तो मेरी उलझन और बढ़ा दी। अहमद किसी और को पसंद, ये बात सोचकर ही जलन हो रही थी। एक अजीब सी आग जल रही थी, जैसे वो अब सिर्फ मेरे हैं और उन पर अब किसी का हक नहीं। सारी मोहब्बत, सारी वफाएं, सब कुछ सिर्फ मेरा है। कितनी अजीब बात होती है, जिसे ठीक से जानते भी ना हो, उसकी एक झलक ऐसा सहर कर दे कि बस वही आपके लिए सब कुछ हो जाए। शायद ये सब कुछ हो जाए। शायद आयशा ठीक कह रही है, मुझे बात करनी चाहिए। फिर अगले ही लम्हे ख्याल झटक दिया, अब जो होगा देखा जाएगा। देखो, हौसला करके एक बार बात तो करो।
अगले दिन उसने फिर वही बात छेड़ी, लेकिन अब मैं उसकी बात पर गौर कर रही थी। अच्छा ठीक है, ये सुनते ही उसने झट मोबाइल निकाल कर दिया। मगर कुछ नहीं, कॉल करो। अरे बेवकूफ, मुझे उनका नंबर नहीं पता। लो जी, वो सर पीट कर रह गई। अच्छा, अली के पास है नंबर? पता नहीं, शायद मैं कुछ ना बता सकी। चलो खैर है, मैं खुद अली के मोबाइल से चेक करके लाती हूँ, उसने कुछ जासूसी वाले मूड में कहा। अरे अली भाई, वो आपके मोबाइल में महक की मंगनी की तस्वीरें तो दिखाएं। बाजी ने दिखाई तो थी। हाँ, बस मुझे दोबारा देखनी है। चलो शाबाश, निकालो फोन। नहीं दे रहा फोन, क्या कर लोगी? काफी लंबी बहस तकरार के बाद उसने मोबाइल दे दिया। शुक्र है नंबर मिल गया। अरे किसी और अहमद का ना हो, मैंने परेशानी से कहा। क्यों, अली कितने लोग? उसने टेरेस पर जाकर कॉल मिलाकर मुझे दी और खुद चौकीदारी करने लगी। बेल जा रही थी और मेरी धड़कनें बढ़ रही थी। हेलो, आवाज सुनते ही दिल उछल कर लगता था बाहर ही आ जाएगा। जी कौन? जी मैंने फोन काट दिया। नहीं काटती तो शायद मैं मर ही जाती। वो फल्ला, ये किस मुश्किल में फंस गई हूँ मैं। मोबाइल दोबारा बजने लगा। अहमद कॉल बैक कर रहे थे। डर के मारे हवास बेसाख्ता हो गए। क्या करूं? फोन मुसलसल बज रहा था। हिम्मत करके फोन रिसीव किया। हेलो जी, आपने अभी फोन किया था? अहमद ने सामने से सवाल किया। जी, वो मैं आपसे बात करना चाहती थी। कौन? आप कौन बात कर रही हैं? जी, मैं महक। तुम? वो हैरानगी से बोले। आप क्या बात करनी है आपको? बस कुछ पूछना था। क्या? वो आप किसी और को तो पसंद नहीं करते, मैंने बेसाख्ता ही कह दिया। क्या? अहमद चौंके, फिर गुस्से से बोले, अगर करता भी हूँ तो क्या फर्क पड़ता है? तुमने तो कर लिया जो करना था। मैंने क्या किया? मैं मासूमियत से बोली। तो वो और भी भड़क गए। बात नहीं पता तो अब मुझे क्या पता करने के लिए कॉल की है? लंबी सांस लेकर फिर कहना शुरू किया। जब आपसे मैंने कहा था मना कर दो तो क्यों नहीं मानी? मेरी बात क्या जवाब देती? जी देखिए, आप खुद भी तो मना कर सकते थे ना, कह देते मैं आपको पसंद नहीं। अगर मैं कर सकता तो आपसे क्यों कहता? तो मैं अब क्या करूं? मैंने बेचारगी से बोला। कुछ नहीं, उसने ठंडी आह भर कर कहा। खैर, अब इन बातों का कोई फायदा नहीं। अब जो भी है, तुम इन सबको भुगतने के लिए तैयार रहो। डांट कर फोन बंद कर दिया। मेरी आंखों से आंसू रवां थे। क्या दो लोग जिनकी शादी होने वाली हो वो ऐसे बात करते हैं? इसलिए लोग लव मैरिज करते हैं, वही सही होती है। इन्हीं सोचों में गुम थी कि आयशा ने आवाज लगाई। हो गई बात। आयशा की आवाज सुनकर जल्दी से आंसू पूंछे और उसके गले लग गई ताकि वो मेरा चेहरा ना पढ़ ले। सब ठीक है? आयशा ने फिर पूछा। मैं मुस्कुराकर बोली, हाँ सब ठीक है। वो कह रहे हैं ऐसी कोई बात नहीं, मुझे इस शादी से कोई एतराज नहीं। देखा, अच्छा हुआ ना बात कर ली। चलो अब तो मुतमईन हो ना? जी, मैंने मुस्कुराकर कहा। सच कहकर भी क्या करती, वो कोई और तमाशा खड़ा कर देती। अब अल्लाह से ही दुआ कर सकती हूँ। अम्मी आज मुझसे खूब प्यार कर रही थी। करती भी क्यों ना, आज इस घर से रुखसत जो हो रही थी। जल्दी करो, कॉलर के लिए देर हो रही है। आयशा बेटा, सब चीजें ध्यान से रख लो। महक को जूस वगैरह पिला देना। अम्मी आयशा को ताकीद कर रही थी। मैं आज अम्मी पापा से लिपट कर खूब रो रही थी। मेरा जाने का बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था। आज तो मुझे अपने भाई पर भी बहुत प्यार आ रहा था। ये सब मोहब्बत करने वाले लोग थे। उनको छोड़कर ऐसे शख्स के पास चली जाऊं जो मुझसे सीधे मुंह बात भी नहीं करता। फिर मैं नेक तमन्नाओं के साथ घर से निकली। माशाल्लाह, बहुत प्यारी लग रही हो महक। खुद को आईने में देखो तो सही। मगर मेरे अंदर तो अलग ही जंग थी। किसके लिए संवर रही हूँ जो पता नहीं मेरा है भी या नहीं। लड़कियां पिया मिलन की हसीन ख्वाब देखती हैं, पर मैं तो हजारों अंदेशों में मुब्तला हूँ। कबूल है, निकाह हो गया। सब मुबारकबाद दे रहे थे। अहमद की अम्मी ने मुझे खूब प्यार किया। बलायनी मारिया भी मेरे आगे पीछे हो रही थी। एक अजीब सा इत्मीनान महसूस किया मैंने। निकाह के 3 बोलने बहुत हिम्मत भरती थी मुझ में। अब अहमद मेरे हैं, उनको मैं अपना बना लूंगी। एक नया अज़म दिल में फूटने लगा। वसवसों की जगह अहमद के लिए प्यार उमड़ने लगा। वाकई निकाह में बहुत ताकत होती है। सुना था कि निकाह के बाद दिल में अल्लाह ऐसे मोहब्बत पैदा करते हैं जैसे ज़ख़ीर जमीन पर खेती। इसको महसूस कर रही थी। इतने सारे लोगों के बावजूद मैं इतनी हलचल और गहमा गहमी में भी अहमद को देखने, उनसे मिलने का सोच रही थी। कुछ देर तक अहमद मुझे देखते रहे, फिर गला खंकारा। कैसी हैं आप? जी ठीक हूँ। कुछ चाहिए तो नहीं? जूस वगैरह या कुछ खा लें? नहीं, दिल नहीं कर रहा।
मेरा तो घबराहट के मारे बुरा हाल था। फिर दिल में सोचा, आज तो जनाब की टोन ही अलग है, इतनी मेहरबानी। मैं चुप बैठी रही तो कुछ यूं बोले, अब नहीं पूछोगी कुछ मुझसे? जी नहीं, मैंने मुख्तसर जवाब दिया, लेकिन मैं आज सब सच बताना चाहता हूँ। वो कुछ ऐसे बोले कि मैं घबरा गई। नहीं, मुझे नहीं जानना, मगर मैं सच बोलना चाहता हूँ। सब क्लियर किए बगैर नई जिंदगी शुरू नहीं हो सकती। वो बाजिद थे तो मैंने कहा, जी बोलिए, मगर मेरे जज्बात आपके लिए नहीं बदलेंगे। अच्छा, क्या जज्बात हैं आपके मेरे लिए? वो कुछ शरारती अंदाज में बोले तो मैं उलझ गई। बस आप अपनी बात कहें। आप जानना चाहती थी कि मैं किसी को पसंद तो नहीं करता? तो सुनो, हाँ, है कोई जो मुझे बहुत अजीज है, मेरी मोहब्बत, मेरा सब कुछ। उसे मैंने अपने अब्बू के एक दोस्त के बेटे की शादी में देखा। उसका मासूम चेहरा, बाहया नजरें और तमीज़ और अदाब मेरे दिल में घर कर गए। मुझे पता ही ना चला कि मैं कब उसके इश्क में गिरफ्तार हो गया। सुनकर मेरी तो कैफियत ही बदल गई। वो बोले जा रहे थे और मेरी आंखें नम और जुबान खुश्क हो। अपनी शादी की रात में दुल्हन को छोड़कर दूसरी लड़की की तारीफ कर रहे हैं। मेरे बारे में तो एक लफ्ज ना फूटा उनके मुंह से। उसके लिए कसीदा पढ़े जा रहे हैं। वो मुसलसल उसकी तारीफ कर रहे थे और मैं जलकर आग बगोला हो रही थी, बल्कि कोयला हुए जा रही थी। कुछ देर चुप होते मुझे देखकर मुस्कुराए और फिर अपनी हुस्न की देवी की प्रस्तिश शुरू कर देते। अब बस भी करें। मैं अब जल कर बोली तो वो खूब हंसे और बोले, चलो जलो मत, उसकी तस्वीरें देख लो जो मैंने शादी में छुप के ली थी। उस जालिम ने तो मुझे आंख उठाकर भी ना देखा। वो हसरत से बोले, नहीं, मुझे नहीं देखनी, मैं अब बहुत चिढ़ चुकी थी। अच्छा प्लीज देख लो, ऐसी बनने की कोशिश करना तो शायद मुझे तुम पसंद आने लगो। वो तंजिया बोले। मैंने भी गुस्से में मोबाइल छीना और देखने लगी। अब तो मारे हैरत के मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। वो मेरी ही तस्वीरें थी। ये पापा और अब्बू के फ्रेंड अंसारी अंकल के बेटे की शादी थी। मैं हैरत से देख रही थी, मानो यकीन न आ रहा हो। यानी जो तारीफें ये कर रहे थे सब मेरे लिए थी, मगर मैं अब भी समझ ना पा रही थी कि वो सब क्या था। मुझे हैरत में मुब्तला देखकर अहमद ने मेरा हाथ थामा और बहुत मोहब्बत से बोले, दरअसल अम्मी शादी में खास मुझे तुम्हें ही दिखाने के लिए लेकर गई थी। जब मेरी मर्जी मालूम कर ली, उसके बाद ही रिश्ता की बात आगे बढ़ाई। मुझे माफ कर दो, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता था। तो वो सब क्या था? बस मैं चाहता था कि आप अपनी जिंदगी का फैसला किसी दबाव में नहीं, अपनी मर्जी से करो। इसलिए मना करने के लिए कहा ताकि आपके दिल को टटोल सकूं। अगर तुम्हें मैं पसंद नहीं आया तो मेरी इसी बात को घर में बताकर मना कर दो, क्योंकि मैं जानता था तुम अपनी मर्जी करने वालों में से नहीं हो। यकीन जानो, ये मैं ही जानता हूँ कि किस दिल से तुमसे ये सब कहा। और अगर मैं वाकई मना कर देती तो इसे तुम्हारी मर्जी समझकर कबूल करता, लेकिन मुझे उम्मीद थी कि आप ऐसा नहीं करोगी। ये तो कोई बात नहीं हुई। पता है कितनी परेशानी में ये चंद महीने गुजरे। फिर उस दिन फोन पर इस तरह का रवैया क्यों किया? जानते हो मैं कितना रोई? मुझसे ज्यादा? वो तड़प कर बोले, मेरी तो रात भर तड़पते हुए गुजरी। मुझे अंदाजा नहीं था कि आप अभी तक इस बात की वजह से परेशान हो। मुझे लगा तुम किसी की बातों में आकर मुझे कॉल कर रही हो, इसलिए गुस्सा आ गया, क्योंकि आप ऐसी नहीं हो, मैं जानता हूँ। हाँ, किया तो अपनी कजन के ही कहने पर था, मैंने एतराफ किया। अब मेरे दोनों हाथों को मजबूती से थाम कर बोले, एक और बात भी है कि कहीं तुम मना ना कर दो, इसलिए दोबारा फोन भी किया था मैंने। क्या आपने दोबारा कॉल की थी? मैं हैरान थी। जी, आयशा से मेरी बात हुई थी। मैंने उसे सब सच बता दिया था, मगर उसने मुझे आपको बताने से मना कर दिया। कहने लगी, बेफिक्र हो, लड़की कहीं नहीं जाएगी। क्या ऐसा कहा उसने? अब मुझे आयशा की बच्ची पर गुस्सा आ रहा था। कहने लगी, जो जज्बात आपके हैं, महक के भी आपके लिए यही जज्बात हैं। ये सुनकर मेरा दिल झूम उठा कि मैं जैसा चाहता था वही हो गया। आपने मुझे दिल से कबूल किया, मैं भी आपको पसंद हूँ, ये ख्याल ही दिल को लुभाने था। बस ये चंद दिन सदियों की तरह गुजरे हैं कि कब मैं तुमसे हाले दिल कह सकूं। प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता था। मैं हर गलती के लिए माफी चाहता हूँ। कोई बात नहीं, शायद ये हमारी मोहब्बत बढ़ाने की वजह बन गई, मैंने मुस्कुराकर कहा। तो एक इत्मीनान सा उनके चेहरे पर छा गया। क्या अब हम अपनी जिंदगी की शुरुआत किसी शक व शुबहात के बगैर कर सकते हैं? मैं शर्मा गई। उन्होंने मेरा गिफ्ट मुझे दिया, लेकिन इन मादी चीजों से ज्यादा वो मोहब्बत अहम थी जिसकी मैं तवक्को भी नहीं कर रही थी। और ये भी सोच रही थी कि सुबह कब घर जाऊं और आयशा की क्लास लूं। अरेंज मैरिज हो या लव मैरिज, जिन दिलों को मिलना होता है वो मिल जाते हैं। बस हमें अपने बड़ों पर भरोसा करना चाहिए कि वो हमारे लिए सबसे बेहतर चाहते हैं।